مسرت سلطانہ فردانہ ہاشمی، محمد صادقین، اقرا یونس، عائشہ سلیم، ثانیہ، شنایا، تنزیلہ بلال، محمد ارسلان حسن، یسرا جاوید۔ اب میں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 360 یا 300 سے پلس نمبر حاصل کیے ہیں، میں اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اورلی ان کا ٹیسٹ لیں اور ان سے سوالات پوچھیں۔ کچھ سوالات میں آپ کی طرف سے بھی میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سوال، کیونکہ انہوں نے 360 میں سے 360 تقریباً، کسی کے 300 کسی کے 300، یہ ٹاپ 20 ہوں گے تقریباً وہ بچے ہیں جنہوں نے صحیح جوابات دیے۔ اب ان کا دیکھتے ہیں ٹیسٹ کے اورلی بھی جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ ارسلان، ہاں اس کو بلائیے پہلے۔ اس بچے کا ارسلان حسین، آپ کا اس کے بارے میں کچھ ارسلان حسین کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ جس دن میں نے یہ ٹیسٹ لیا تھا، یعنی فاطمہ اکیڈمی میں جب یہ ٹیسٹ چل رہا تھا، اس نے 15 منٹ میں ان کے سارے جوابات دے دیے تھے۔ 15 منٹ میں، اس بچے کے لیے تالی بجائیے۔ اور میں حیران تھا کہ یہ بچے نے جواب کیسے دے دیے، کہ کیوں خالی بیٹھا ہوا۔ اس نے پھر دوبارہ سے کہا نہیں سر میں نے سب کچھ کر لیا۔ میں سب سے پہلے انہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ نے نا سارے 25 کے 25 سوالوں کے جواب دیے تھے، یہ لیجئے مائک اور جواب دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم کس کو دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر امتی کے لیے کیا لازم اور ضروری ہے؟ ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو اور ان کے راستے پر چلو۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام بی بی آمنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے تھے؟ 3۔ لڑکیاں کتنی تھیں؟ 4۔ لڑکوں کے نام بتائیں۔ عبداللہ، قاسم، ابراہیم۔ لڑکیوں کے نام بتائیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ انہیں سب سوالوں کے جواب آتے ہیں، اس لیے اب میں بڑوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، آپ بتائیے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں انعام کے لیے؟ آپ ہلکی آپ زور سے بولیے اس بچے کے۔ ویری گڈ۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہیں سے بھی کوئی بھی سوال کر لوں گا، کسی کو یہ کتاب اسی بکلیٹ سے ہے، میں کہیں سے بھی کوئی بھی سوال کسی سے بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس کیا تھا؟ سوال کا میں کس سے کروں گا، آپ بتائیے کس سے سوال کا جواب لینا چاہیے؟ آپ ان میں سے کسی سے بھی کہیے۔ آپ جس سے چاہیں گے ان سے سوال پوچھے جائیں گے، بتائیے کس سے؟ سیکنڈ سے ہی پوچھتے ہیں، چلیے بتائیے۔ پسندیدہ لباس کیا؟ لباس کیا تھا؟ حضور اسلام کا پسندیدہ لباس سفید رنگ کا بھی پسند کرتے تھے وہ، اور سبز رنگ کا بھی پسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو رد کرنے سے منع فرمایا؟ تکیہ، خوشبو اور تیل اور دودھ۔ دودھ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل کیا تھا؟ ہاں جی ادھر سے بتائیے، اب ادھر سے، یہ بڑے لڑکے ہیں نا، میرے خیال ہے ان سے پوچھا جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ان سے پوچھا جائے۔ ہاں کوشچن بول دیں گے، بولا کوشچن پوچھ دیں گے دوبارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل کیا تھا؟ جی مسواک کرنا۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی؟ کدو کی سبزی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا تیل سب سے زیادہ پسند تھا؟ زیتون کا تیل۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सुरमा इस्तेमाल फरमाते थे? इजमिर। चलिए आपसे दूसरा सवाल करेंगे आप। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक किसके पास रहे? अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और दादा का इंतकाल कब हुआ? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के थे तो वालिदा का आप कोई दूसरा जवाब दे, कोई दूसरा जवाब दे। अब अयाज को अयाज अरब के तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम क्यों किया करते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बुरे कामों से बचते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छे अमानतदार ताजिर थे, इसलिए अरब के तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम किया करते थे। हजरत खदीजा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम क्यों भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और सच्चाई को देखकर निकाह का पैगाम भेजा। दूसरे को दें। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, आप बताइए अजवाज़े मुतहरात कौन होती हैं और तमाम के नाम बताइए। आप मेरे कितना बताना चाहेंगी हैं? थोड़े हाथ कम होंगे, सवाल थोड़े टफ होंगे। अज़वाज मुतहरात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं जो तमाम उम्मत की माएँ हैं, और उनके नाम ये हैं। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, सबसे उसके बाद हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाकिन रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, और हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। जी हजरत, मैं कारी उस्मान साहब से पूछना चाहूँगा। हाँ जी, ये सवालों के जवाब सही है, जवाब तकरीबन सही है, इनके लिए तालियां बजाइए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, थोड़ा मुश्किल है। चलिए, आप तैयार हैं? इनसे पूछा जाए, आपकी कितनी बीवियां थी? 11 12 11 सही है जवाब। चलिए, हजरत खदीजा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम क्यों भेजा? इधर बैठ। आप वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी को देखकर हजरत खदीजा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो क्या होता था? जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त और वो पत्थर झुक जाते थे, आपको सलाम करते थे। दूसरे को दे। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुसलसल तकलीफों के बाद हमारे नबी पर अल्लाह का क्या इनाम हुआ? इधर ही पूछे। एक मिनट, अब आप बताइए इनमें से किससे पूछा जाए? आप बताइए। मुसलसल तकलीफों के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या इनाम हुआ? अल्लाह ताला का क्या इनाम हुआ? मुसलसल तकलीफों के बाद आप सल्लम पर मेराज का वाक़या पेश आया। क्या जवाब? मिराज का वाक़या पेश आया, सही है। मिराज की तफसील बयान करें। अब मिराज की तफसील भी बताइए। दो से ही बोल रहा हूँ। ताइफ से सफ़र के बाद आप सल्लम मक्का वापस आ गए। फिर एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फुप्पी उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ और आप सल्लम को एक तेज़ घोड़े की सवारी बुर्राक पर बिठाकर मक्का से बैतुल मुक़द्दस ले गए। फिर वहाँ से सातों आसमान का सफ़र कराया। फिर आप सल्लम को जन्नत और जहन्नुम का सफ़र कराया। फिर आखिरी में अल्लाह के दरबार हाजिर हुए। वहाँ पर जाकर आप सल्लम पर 5 नमाजें फ़र्ज़ हुई। साकिब से डिमांड आ रही है सवाल पूछने की। साकिब से तो मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, इससे पहले भाईजान मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए, काफिरों ने मुसलमानों का बाइकाट क्यों किया? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर लोगों को दीन की दावत दी और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम कबूल करने लगे, तो अहले कुफ़ार को, जो कुफ़ाराने कुरैश थे, उनको इस बात की फ़िक्र हुई कि ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और बुत परस्ती छोड़ रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने अल्लाह के रसूल और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश रचकर एक साजिश के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को बायकाट कर दिया और शैब अबी तालिब के अंदर 27 महीने तक बायकाट में रहना पड़ा। ठीक जवाब। तबलीग इस्लाम का आगाज़ किस तरह हुआ?
تبلیغ آغاز کا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صحیح روایت کے مطابق 39 سال 6 مہینے 12 دن میں قمری اعتبار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یا پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا سے واپس آنے کے بعد پہلے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کی، پھر حضرت ابو بکر نے، پھر حضرت علی نے، اور غلام میں حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا میں جا کر لوگوں کو یا صفا کہہ کر آواز دی، اور تمیز سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی نئی چیز کی خبر دینے والے ہیں. تمام مکہ کے لوگ جا کے وہاں جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی. اس کے یا دوسری روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاران قریش کو اپنے گھر میں دعوت کی، اہل کفار کو، اور سرداران، خاص کر سرداران قریش کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے جب سب فارغ ہو گئے تو ان کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی طرف سب کو بلایا. آپ نے کئی سوالوں کا جواب اس میں مکس کر دیا، لیکن ٹھیک ہے. اب میں ادھر سے سوال جاننا چاہتا ہوں. آپ بتائیے اقرا، ہمارے نبی جب عبادت کیا کرتے تھے تو وہ کہاں کرتے تھے؟ غار ہیرا میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام کا کام کیا؟ 3 سال تک. اس عرصے میں کتنے لوگ اسلام لائے؟ 40 تقریباً 40 لوگ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اپنی دعوت کا اعلان کس طرح کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کھلم کھلا اسلام کی دعوت دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب صفا پہاڑی پہ چڑھ کے قبیلے قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی اور سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیا کہ اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا کھلم کھلا اعلان فرمایا. کافروں نے ابو طالب سے کیا شکایت کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کلام بلا خوف و خطرے سے لوگوں کو سنانے لگے تو دشمنوں کو بہت فکر ہوئی اور سب جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی. ملک حبش کا بادشاہ کون تھا اور وہ کیسا تھا؟ ملک حبش کا بادشاہ نجاشی تھا اور وہ بہت نیک دل تھا. حضرت جعفر کی تقریر کیا ہے بتائیے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی کہ اے بادشاہ، پہلے بالکل جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں سارے برے کاموں سے روک دیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. اور سارے عرب کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کی دعوت قبول نہیں کری اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ بازار کے شہریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، پتھروں سے مارتے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئی. کافروں کو کیا فکر ہوئی اور انہوں نے کیا مشورہ کیا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دی تو کافروں کو بہت فکر ہوئی اور ایک رات سب جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا. ہجرت کا سفر کیسے ہوا مختصر طور پر بیان کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی پھپھی ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کیسے ہوا؟ کیسے مکے سے مدینہ گئے نا، ہجرت ہوا ہے. حضرت محمد جب کافروں کو بہت فکر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ایک رات جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا مشورہ کیا. نعوذ باللہ، ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے برے ارادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کا حکم دیا. ان کو دے دیں بس، ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک کس کے پاس رہے؟ 2 سال تک کس کے پاس رہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نہیں، 2 سال تک اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کس کے پاس رہے 2 سال؟ اچھا، اپنے والدہ کے انتقال، حضرت اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس. جی بہتر ہے، آگے دیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
की वालदा और दादा का इंतकाल कब हुआ? वालिदा का इंतकाल उनकी 6 बरस की उम्र में और दादा का इंतकाल 8 बरस की उम्र ठीक में है। हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ताजिर थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अमानतदार और सच्चे ताजिर थे। आगे देते रहें। अरब के तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व एहतराम क्यों किया करते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे, जालिमों को जुल्म से रोकते थे और गरीबों की मदद किया करते थे। हजरत खदीजा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम क्यों भेजा? क्यों उनकी अच्छाई और ईमानदारी को देखकर आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने उनको निकाह का पैगाम भेजा। निकाह के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की 40 साल थी। नबूवत की अलामतें कब से जाहिर हुई? नबूवत की अलामतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले ही जाहिर होने लगी थी। हजरत हलीमा ने नबूवत की किन अलामतों को देखा? हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की गर्ज से घर ले आने लगी तो आपकी कमज़ोर ऊँटनी बहुत तेज़ दौड़ने लगी और घर पहुंचने के बाद बकरियों के थनों में दूध ज़्यादा आने लगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ इबादत किया करते थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत किया करते थे। वही के नज़ूल के बाद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत हुई? वही के नज़ुल होने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराहट महसूस कर रहे थे और वो घर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने सारा किस्सा अपनी बीवी हज़रत खदीजा को सुनाया और उन्होंने तसल्ली दी और अपने चचेरा भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गई जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद क्या दावत दी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद तबलीग इस्लाम की दावत दी। तौहीद और रिसालत। तौहीद और रिसालत की दावत दी। सबसे पहले किन लोगों ने इस्लाम कबूल किया? पहले औरतों में हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, गुलाम में हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला ने, बच्चों में हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने, लोंडी में हजरत सकना। चलिए आगे देते हैं। ठीक, ये बताएं कि जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। जहन्नुम के दारोगा का नाम? जहन्नुम के दरोगा का नाम मालिक है। सबसे पहले अजान किसने दी? सबसे पहले अजान हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी। सहाबी किसे कहते हैं? साहबी जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में उसकी वफात हुई हो उसे सहाबी कहते हैं। हुजूर के राजदार का नाम बताएं। हुजूर के राजदार का नाम उज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ठीक है। शायर रसूल का नाम बताएं। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद कौन थे? खालिद बिन वलीद सहाबी थे। ये जो बच्चे हैं इनमें से कुछ बच्चे हमारे हैं और ये कुछ बच्चे बाहर से आए हैं। ये जो बच्चे हैं इनको तकरीबन 500 सवालों का जवाब आते हैं अजान के बाद। सबसे पहले इनको तरबियत दी जाती है कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज दुरुस्त कर रहे हैं इनकी बिल्कुल, और उसके बाद बचे हुए टाइम में ये इस्लामी मालूमात हासिल करते हैं जो कि इन्हें 400-500 क्वेश्चन इन्हें आते हैं। अजान के बाद हमें जब अजान हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब अजान हो रही हो तो हमें मुअज्जिन के वही कलमात दोहराने चाहिए और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना चाहिए। चलिए, तो और सुबह के अजान में क्या फ़र्क है? सुबह के अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बरता कहना चाहिए। चलिए, अजान के बाद दुआ जो पढ़ते हैं वो बताइए। अजान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दाअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीअ वबअथहु मक़ामन महमूदनिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुल यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। असल में बात दरअसल ये है कि ये जो हमने थोड़ा सा एक बुकलेट जो आपको दी थी ये तो एक थोड़ा सा लोगों को एक अट्रैक्ट करने के लिए है, नबियत सीरत से वाकिफ़ कराने के लिए, क्योंकि हमें अगर अपने नबी का सारी मालूमात नहीं होगी तो हम आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, सुन्नत पे कैसे चलेंगे। इन बच्चों को सबसे पहले कुरान की तरबियत जो यहाँ पे दी जा रही है, तजवीज़ क़ारी उस्मान साहब इन्हें तजवीज़ सिखाते हैं, कुरान के तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ठीक करते हैं, मखरज के साथ कुरान पढ़ते हैं, नमाज इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो पीछे के बच्चे हैं ये नमाज में 51 सुन्नतें पूरी बता देंगे कि सजदे में कितनी सुन्नतें हैं, रुकू में कितनी सुन्नतें हैं। ये 51 की 51 टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताया था। कहने का मकसद ये है कि हम जो यहाँ मदरसे में तालीम दे रहे हैं जो वो बिल्कुल ज़ाब्ते के मुताबिक होती है और उलमा उसको तालीम दे रहे हैं। ये जो हमने बुकलेट दी थी ये आप लोगों को लग रहा हो कि भाई ऐसा और सा लग रहा हो, लेकिन ये मालूमात के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद उनको सही पैटर्न पे ले आते हैं हम और उनको पूरी, ये बच्चा
वजू में कौन सी दुआ पढ़ते हैं, उठने बैठने हर दुआ बता सकते हैं। साकिब को दें 1 मिनट मुफ्ती साहब से मैं और चाहूँगा, तो उसमें कुछ दुआएं भी जो चाहते हैं ये मतलब कि हर दुआ जानते हैं। खाना खाने के बाद क्या दुआ पढ़ते हैं? खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। रात को सोने के वक्त क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता और जीता हूँ। सुबह उठने के बाद क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमाताना व इलैहिन नुशूर। सुबह उठने की सुन्नतें कितनी हैं? सुबह उठने की 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नींद से उठते ही दोनों हाथों से आंखों और चेहरों को मसलना। नंबर 2, मिसवाक करना। नंबर 3, सोकर उठने की दुआ पढ़ना। ठीक है, इसके बैतुल खला जाने से पहले की दुआ बताएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नापाक जिनों से, मर्द हो या औरत। बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद की दुआ गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबनी रज़ा व आफ़ानी। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे तकलीफ को दूर किया और आफरत बख्शी। दूध पीने की दुआ बताएंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, ए अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा और हमें ज़्यादा अता फरमा। अच्छा, ये चाय पीने की दुआ भी यही है? जी चलें, ठीक है। अच्छा, खाना खाने की सुन्नतें कितनी है? 14 बताएं। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ घट्टों तक धोना और ना पहुँचना। नंबर 3, दाएं हाथ से खाना। नंबर 4, ठीक है, आपको 14 आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताएं पानी पीने के बाद की दुआ बताएं। पानी पीने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकाना अज़बन फुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिलहन उजाज़म बिजुनूबिना। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपनी रहमत से मीठा पानी पिलाया और हमारे गुनाहों की वजह से उसे खारा और कड़वा नहीं बनाया। मुफ्ती मुकर्रम साहब, डॉक्टर मुकर्रम साहब जो फतेहपुरी के शाही इमाम हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। उनको कहीं जाना है, इसलिए ये जो बच्चे कुछ हैं इनके और भी हमने प्रोग्राम इबादत, मामलात, माशरात, 5 शोबों पे इन लोगों को हमने 5 बच्चों को तैयार करा जो अपने बैच डाल के आपके सामने आएंगे भी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुफ्ती साहब को कहीं जाना है। इसलिए मैं अब उनके इन सब के बाद उनको दावत। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इसने एक तकरीर तैयार किया, मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या जहाँ इतना टाइम लिया 5 मिनट और आप सुनाइए। मेरी तकरीर थोड़ी सी है, आज पहले लंबी थी जी। कुफार मक्का के बारे में। कुफार मक्का मुशरिकीन और अरब की तरफ से आप वही वाली सुनाइए। वही नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेहमान खुसूसी ख्वातीन व हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे मुसलमान बनाया और इस लायक बनाया कि आपके सामने हदीस का बयान कर सकूँ। मैं फातिमा एकेडमी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे स्टेज पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फातिमा एकेडमी के मकतब में पढ़ने के लिए भेजा। और मैं अपने उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ाया और सिखाया। और मेरा मौजू हिफ्ज़ हदीस। हिफ्ज़ हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें और किए हुए कामों को हदीस कहते हैं और हदीस के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तरोताज़ा रखे उस इंसान को जो हदीस को सीखे, उसको याद करे और जैसा सुना था उसी तरह दूसरों तक पहुँचा दे। जिस तरह कुरान का इल्म हासिल करना ज़रूरी है उसी तरह हदीस का जानना भी ज़रूरी है। हदीस कुरान की तशरीह है, हदीस के बगैर कुरान समझ में नहीं आ सकता। जिस तरह कुरान में नमाज पढ़ने का जिक्र है लेकिन तरीका नहीं है, तरीका मालूम होगा हदीस से। हदीस को सीखना, उसको याद करना और जैसे सुना था उसी तरह उम्मत तक पहुँचा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तरोताज़ा रखे उस इंसान को जो हदीस को सीखे, उसको याद करे और जैसे सुना था उसी तरह दूसरों तक पहुँचा दे। इसीलिए सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बुजुर्गान दीन एक एक हदीस सीखने के लिए कई दिन का सफ़र किया। क़यामत में तो इसका फ़ायदा होगा ही, ज़िंदगी में हदीस का अमल का ज़रिया भी बनेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल जो मैं जानना चाहता था, क्योंकि हमारे नबी जब ताइफ गए थे तो वहाँ पे फरिश्ता जब नाजिल हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, फरिश्ते ने क्या कहा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ताइफ के लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें दी, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को भेजा कि ए रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में इन ताइफ वालों को कुचल दूं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, क्या पता इनमें से नहीं तो इनकी उम्मत में से कोई अल्लाह का बंदा पैदा होगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला तो वो ताइफ के ही थे जो यहाँ इस्लाम फैला। तो इसलिए अगर हमारे नबी चाहते तो उस टाइम पे उनके साथ उनको जुल्म का बदला दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया और दुआ दी उल्टी। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने एक किताब तैयार करी है 140 सवालों की, जो अगला टारगेट देंगे। ये मजबूरी थी कि रबीउल अव्वल का महीना था तो हमने ये सब चीज़ें चलाई, वरना एग्जाम के टाइम पे हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते। वो 140 सवालों की जो वो छोटे छोटे सवाल हैं, हम एग्जाम के बाद वो टारगेट देंगे, उस पर सब तैयारी करेंगे। और इसी तरह क्योंकि जैसे हमारे बच्चे 500 सवाल जनरल नॉलेज के दे सकते हैं और नमाज और कुरान इनका दुरुस्त है, तकरीबन दुरुस्त है। कारी साहब, मुफ्ती साहब जो गलती हो जाए इनसे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और वो तैयारी करेंगे आगे के लिए। इन बच्चों को मैं बाद में दोबारा बुलाऊंगा जो इन्होंने इबादत मामलात की तैयारी करी है और पूरी इंट्रो देंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किस तरह से शुरू से आखिर तक कैसे हमारे नबी ने काम करा, वो मैं दोबारा बुलाऊंगा। और मैं ये बताना, हमारे बीच जो है मौलाना इकराम साहब जो हैं कासमी, वो मौजूद हैं क्योंकि हमारे वो भी उस्ताद हैं, और अतर मुस्लिम साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं एक सवाल आप सबसे करना चाहता हूं, बताइए मदीना कहाँ है? बताइए कहाँ पर? मक्का कहाँ है? मक्का किसने बनाया था? चलिए